are discussing about the exercise question answers of chapter 2, and we had completed the in-text question answer. We have completed in-text question answer, and next I am starting a exercise question of chapter number 2. Chapter number 2 exercise question I am starting. So everyone watch carefully. NCERT बुक में फर्स्ट क्वेश्चन आप निकालिए अपनी NCERT बुक. NCERT क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Which separation technique will you apply for the separation of following? कुछ सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी सेपरेशन टेक्निक्स हम अप्लाई करेंगे फॉलोइंग्स में. वन बाय वन आई एम रीडिंग. यू हैव टू लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन द आंसर ऑल्सो. फर्स्ट इज सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर. सोडियम क्लोराइड separate करना है from the solution of water. The sodium chloride is a homogeneous. Sodium chloride is a salt and it is a homogeneous substance. So how can we separate the homogeneous mixture? We can separate homogeneous mixture by the evaporation. So what is the answer? The answer is the evaporation. Next, ammonium chloride from a mixture containing sodium chloride and ammonium chloride. Sodium chloride and ammonium chloride. Ammonium chloride, we know that ammonium chloride is a sublime substance. So sublime substance we can separate by the sublimation. So what is the answer of the second? The second answer is sublimation. Third, small pieces of metal in the engine oil of a car. जो ऑयल है ऑफ ए कार है उसमें कुछ मेटल के स्मॉल पीसेस उसमें अगर गिर गए हैं तो मेटल के स्मॉल पीसेस को हम कैसे सेपरेट करेंगे? वी कैन सेपरेट मेटल पीसेस ऑफ द कार बाय मैग्नेटिक सेपरेशन, बिकॉज मैग्नेट अट्रैक्ट iron substances, metal substances, so we can separate by the magnetic separation. Next, 4, different pigment from an extract of flower petal. Different pigments जो हैं from an extract of flower petals can be separated by the chromatography. Chromatography is used by the separation of the color pigment. Color pigment को कैसे अलग किया जाता है? By chromatography. Next is butter from curd. It's very easy. Butter from curd by separated by the centrifugation. How can we separate butter from curd? Butter from curd separated by the centrifugation. Next, oil from water separating funnel. Two immiscible liquid. How can we separate two immiscible liquid? Two immiscible liquid separated by the separating funnel. Tea leaves from tea. How can we separate tea leaves from tea? Tea leaves from tea we can separate it by the filtration. जब हम टी बनाते हैं हम कैसे सेपरेट करते हैं टी लीव्स को वाटर से? टी लीव्स फ्रॉम द टी. सो वी कैन सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम द टी बाय द फिल्ट्रेशन. आयरन पिन फ्रॉम सैंड. आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन. आयरन की पिन से. सो हाउ कैन वी सेपरेट आयरन पिन्स? वी कैन सेपरेट आयरन पिन्स बाय द मैग्नेटिक separation method. Next is wheat grain from husk. Wheat grain from husk separated by the winnowing. Winnowing इस तरह से winnowing किया जाता है. Winnowing से हम क्या करते हैं? Wheat grain from the husk. Find mud particles suspended in water. Mud particles suspended in water by separated by the sedimentation and filtration. मड पार्टिकल्स कीचड़ के जो पार्टिकल्स है अगर वो वाटर में मिक्स हो गए हैं तो हम उन्हें कैसे सेपरेट करेंगे? सेंडिमेंट. कुछ टाइम के लिए उसे रख देंगे तो सेंडिमेंट हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएंगे. देन हम उसे अलग कर देंगे अपर वाटर को बाय फिल्ट्रेशन. राइट. सो क्वेश्चन 1 इज क्लियर फॉर एवरीवन. दीज आर द डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स. ओके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर. दीज आर द सेपरेशन टेक्निक. अगेन आई रिपीट दिस. Answer 1 is evaporation, B sublimation, C magnetic separation, D chromatography, centrifugation, separating funnel, filtration, magnetic separation method, winnowing, loading, sedimentation and filtration. Right. Next question number 2. Question 2. Listen carefully everyone. Question 2. Write the steps you would use for making tea. हम घर में टी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, उनके हमें स्टेप्स लिखने हैं.
राइट द स्टेप्स वुड यू यूज फॉर मेकिंग टी. यूज द वर्ड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट, dissolve, soluble, insoluble, filtrate and residue. So हमें यहाँ पे एक प्रोसेस लिखना है, हमें टी बनानी है और उसमें हमें इन टर्म को आइडेंटिफाई करना है. फर्स्ट टर्म इज सॉल्यूशन, वर्ड सॉल्यूशन, solute and solvent. So everyone watch carefully. First is boil water. हमने गैस पे वाटर को बॉईल करने के लिए रखा. सो बॉइल वाटर क्या है? सॉल्वेंट, क्योंकि जिसमें हम कोई चीज मिक्स करते हैं वो होता है हमारा सॉल्वेंट, और जिसको मिक्स किया जाता है वो क्या होता है हमारा. सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट बॉइल वाटर. बॉइल वाटर जिसमें हम मिक्स करते हैं वो होता है हमारा सॉल्वेंट. यहाँ पे बॉइल वाटर में हम क्या मिक्स करेंगे? हम मिक्स करेंगे टी लीव्स. सो बॉइल वाटर हमारा होगा सॉल्वेंट. क्लियर? नेक्स्ट इज सॉल्यूट. ऐड टी लीव्स, हमने उसमें टी लीव्स ऐड की है, हमने शुगर ऐड की है, दैट इज द सॉल्यूट. जो उसमें ऐड किया जाता है वो होता है हमारा सॉल्यूट. नेक्स्ट है सॉल्यूशन. यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा फिल्टर थ्रू टी स्ट्रेनर, फिर हम उसमें बनने के बाद हम उसे फिल्टर करेंगे. जो हमने फिल्टर किया है और बाद जो हमारा फिल्ट्रेट आता है नीचे, जैसे जो हम कप में लेते हैं, जो हमारा फिल्ट्रेट आता है वो हमारा हो गया सॉल्यूशन. राइट? यहाँ पे नेक्स्ट हमें बताना है सॉल्यूट, सॉल्वेंट हो गया, सॉल्यूशन हो गया, डिसॉल्व, सॉल्युबल एंड इनडिसॉल्व. जो डिसॉल्व हो गया, जो सॉल्युबल कंपोनेंट्स थे वो डिसॉल्व हो गए. जैसे कि अगर हमने उसमें शुगर डाली है तो शुगर उसमें डिसॉल्व हो गए, तो शुगर इज अ डिसॉल्व सॉल्यूशन. हमने टी डाला है और हमने क्या मिक्स किया है यहाँ पे सॉल्यूट में, और शुगर भी हमने ऐड किया. राइट? तो ये जो डिसॉल्व होती है वो होती है शुगर, जो कि हमारे मिक्स हो गए हैं. अब टी लीव्स लेफ्ट इन दिस, जो हम चाय की छन्नी में स्ट्रेनर में चाय छानते हैं, तो जो हमारे अपर पार्ट की तरफ रह जाते हैं स्ट्रेनर में, वो होता है हमारा इनसॉल्युबल पार्ट और रेजिड्यू. चाय के ऊपर जो चाय की लीव्स रह जाती है, जो चाय की पत्ती रह जाती है, इनसॉल्युबल पार्ट होता है, वो होता है हमारा रेजिड्यू एंड इनसॉल्युबल पार्ट रेजिड्यू. ओके? स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन इज अ टेबल फॉर्म में क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन आपका जो बुक में दिया हुआ है एक टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है. आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन. फर्स्ट टू एवरीवन लिसन केयरफुली एंड द आंसर्स आई हैव एक्सप्लेन. आई विल एक्सप्लेन द आंसर. फर्स्ट इज प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 4 डिफरेंट सब्सटेंसेस. यहाँ पे 4 डिफरेंट सब्सटेंसेस दिए हुए हैं. पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड. 4 डिफरेंट सब्सटेंसेस है. इनकी डिफरेंट टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी दी हुई है. डाटा इज गिवन बिलो इन टेबल में आपको दिया हुआ डाटा. रिजल्ट द गिवन द फॉलोइंग टेबल एज ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस dissolve in 100 ग्राम of water to form a saturated solution. Saturated solution बनाया है हमने, उसे 100 ग्राम में डिसॉल्व किया. What is the saturated solution? Saturated solution no more solute can be added. जिसमें solute को ऐड नहीं करना होता. This is the saturated solution. So here is a table. यहाँ पे different टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे इनकी solubility की वैल्यू दी हुई है. फर्स्ट आपका है पोटेशियम नाइट्रेट, sodium chloride, potassium chloride and ammonium chloride. So one by one solving this question. First is what mass of potassium nitrate? Question is asking about the potassium nitrate. Potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 gram of water at 373. That means हमें 50 ग्राम दिया हुआ है. 50 ग्राम की हमें वैल्यू निकालनी है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कि कितना मास होगा. सो सॉल्यूशन ऑफ 1 मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट टू ऑब्टेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन 50 ग्राम. 50 ग्राम आपका दिया हुआ है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन का पोटेशियम नाइट्रेट का 50 ग्राम में कितना होगा. 100 ग्राम में उन्होंने दिया हुआ है और 50 ग्राम में आपको पूछा है कि उसका मास कितना होगा. सो यहाँ पे
हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू टेबल पोटेशियम नाइट्रेट का दिया हुआ है आपको कितने टेम्परेचर पे देखना है 313 केल्विन 313। आप इस टेबल को अच्छे से देखेंगे, इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें इनके आंसर्स देने हैं। सो फर्स्ट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट निकालना वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो 373 केल्विन पे इनकी सॉल्युबिलिटी कितनी है 62 ग्राम, और कितने पे निकालना हमें 50 ग्राम। सो 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन 62 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 100, क्योंकि हमें क्या निकालना है उसका मास निकालना है। टोटल सॉल्यूशन कितना है उसका 100 ग्राम। सो 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से कैंसिल 31 ग्राम। 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट ऑब्टेन होगा सॉल्यूशन इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, राइट। सो नेक्स्ट इज ये हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि 100 ग्राम पे 62 है, तो 50 पे कितना हो गया उसका हाफ, 50 पे कितना हो गया उसका हाफ, दैट इज द 31 ग्राम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। अब किसकी बात कर रही है प्रज्ञा, पोटेशियम क्लोराइड एंड वाटर 353 and leave the solution to cool at a room temperature, what would the observe as the solution cool। उसने उसको ऑब्टेंड किया है केल्विन पे और उसको कूल होने के लिए छोड़ दिया है, तो क्या ऑब्टेंड होगा, कूलिंग क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विल बी सेपरेटेड। जब हमने इस टेम्परेचर पे उसे हीट किया है और हमने उसे कूल होने के लिए छोड़ दिया है, तो पोटेशियम क्लोराइड के कूलिंग क्रिस्टल ऑब्टेन होंगे, हमें क्रिस्टल मिल जाएंगे उसके कूलिंग होने पे, राइट। क्वेश्चन 3, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन। 293 केल्विन आपका ये है, फर्स्ट 283 है, सेकेंड 293 है, थर्ड 313 है, देन 333 है एंड 353 है। 293 पे हमें इनकी सॉल्युबिलिटी को फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे देखेंगे 293 पे पोटेशियम नाइट्रेट कितना है, पोटेशियम नाइट्रेट आपका है 32, नेक्स्ट सोडियम क्लोराइड कितना है 36, पोटेशियम क्लोराइड 35, पोटेशियम क्लोराइड कितना है हमारा पोटेशियम 293 पे 35 एंड अमोनियम क्लोराइड 37, और सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है, सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी है अमोनियम क्लोराइड की। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इन द सॉल्युबिलिटी। इससे हमें मालूम चल रहा है स्टूडेंट्स कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है, इंक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर। क्वेश्चन इज आस्किंग अगेन, लिसन केयरफुली, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट का फॉर्मूला फॉर्म है सोडियम क्लोराइड, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। So student, I hope you all are understood first 4 question. First 4 question we have discussed. So I hope you all are clear about it. First हमारा separation techniques का था, second P leaves का था, थर्ड एक टेबल दिया हुआ है, टेबल के अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालने। फर्स्ट हमें निकालना था कि 50 ग्राम पे वाटर में इसे डिजोल्व किया गया है, तो पोटेशियम नाइट्रेट का मास कितना होगा। सो 62 तो उसका ओवरऑल 100 में है, 50 का हमें निकालना है, टोटल 100 है, ये आएगा 31 ग्राम। कूलिंग करने पे इस कूलिंग क्रिस्टल अलग हो जाएंगे पोटेशियम क्लोराइड के। सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी जो है पोटेशियम नाइट्रेट 32 है, सोडियम क्लोराइड 36 है, पोटेशियम क्लोराइड 35 है एंड अमोनियम क्लोराइड 37 है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इंक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर। सॉल्ट जो होता है उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज